Okay, so now I want to talk about the formation of company. In formation of a company, there are three stages, three steps you can call it. Step number one, promotion of company. Step number two, incorporation of a company, or you may call it registration of company for your understanding. But the right word is incorporation. And then the third one is capital subscription, correct? And then you can start the business. So these are the basic three steps. Will you remember this? Can you repeat it with me? Say first one is what? Promotion of company. Are you listening me? Yes, sir. So please, the first stage is what? Promotion of the company. Second, second stage. Incorporation of the company. Correct. And then third, Capital subscription. very nice. Now, here you please understand this one more thing, that all these three steps has to be done by all the companies, whether it is public or private. Yes, sir. No, the answer is no. Why? Because if it is a private company, the first stage you will take promotion of company. Second, you will take incorporation of the company. And then see here what is written. If private limited company is this. If it is yes, if your answer is it is a private limited company, then you can start the business after the second step only. दो स्टेप आपने किया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, अब आप कंपनी शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किस कंपनी में? अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट की पब्लिक? Private. Private. यस, विल यू रिमेंबर दिस? Yes, sir. Yes, sir. But suppose it is not a private company, this is a public limited company. These two steps you took, and then the flow chart says what? If it is a private limited company, yes, you can start the business. There is no problem. Getting it? Yes, sir. Yes, sir. Suppose the answer is no, you don't have this private company, this is a public limited company, तब क्या होगा? तब आपको थर्ड स्टेज भी लेना होगा, थर्ड स्टेप भी पूरा करना होगा। और जब थर्ड क्यों, सर? स्टेप पूरा हो जाएगा, जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो जाएगा, तब आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? हाँ, समवन वांट टू प्लीज। सर बट ऐसा क्यों होता है कि मतलब पब्लिक कंपनी में नहीं करना, मतलब करना होता है और प्राइवेट में नहीं करते? हाँ, गुड क्वेश्चन। हु इज आस्किंग दिस? मे आई नो योर नेम? सॉरी सर रितुल। Ritul, you must have missed my previous class. Yes, sir. Let me show you then. See, what I was, when I was defining the difference between the public company and private company, I said that private company cannot invite the public to subscribe to its securities, and public company can invite the public to subscribe to its share and debentures. तो प्राइवेट कंपनी को जब कैपिटल सब्सक्राइब करना ही नहीं है, शेयर मार्केट से लेने ही नहीं है, अपना शेयर मार्केट में बेचना ही नहीं है, तो फिर ये दूसरा स्टेप कैसे होगा? Yes, sir. ये कहां से आएगा? समझ आया अब? Yes, sir. And this is the basic difference of a private and public company. That public company take this third step also, and private company do not take this third step. Means they don't require to subscribe, do go for the capital subscription. उनको मार्केट में अपना कैपिटल को इशू नहीं करना है ना, उनको मार्केट से कैपिटल रेज नहीं करना है। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir.
Ritul, are you clear about this? Yes, sir. Okay, thank you. Now I would take it one by one, है ना? So let me go for this promotion of company. अब देखो, प्रमोशन वर्ड ऐसा है जो हमने पहले भी कई बार सुना हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. You heard this word promotion? What Yes, does it sir. Yes. what does it mean? बोलो. आगे बढ़ना या तो फ्लरिश. Okay, someone else? Promotion means what? Come on, tell me, what is promotion? Sir, it means advertising. हाँ, एकदम सही. ये दो मीनिंग है जो प्रमोशन के बहुत कॉमन है. पहला क्या, जैसे किसी की जॉब में प्रमोशन होना, किसी की पोस्ट में प्रमोशन होना. माने क्या, पहले वो डेप्यूटी एसपी थे, अब वो एसपी बन गए, राइट? तो उनका प्रमोशन हो गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. Yes, sir. Yes, sir. Sir, promoted to next step. यस, राइट, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन. एक तो प्रमोशन का मतलब ये है, हाँ, ये हम सब लोग जानते. जैसे पहले वो डेप्यूटी मैनेजर थे, अब वो मैनेजर बन गए, है ना? वाइस प्रिंसिपल थे, अभी प्रिंसिपल बन गए. तो ये क्या हुआ, प्रमोशन हुआ. दिस वी ऑल नो. यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरा प्रमोशन का मीनिंग है जो अभी किसने बोला एडवर्टीजमेंट का? Sir, me. नेम. Sir, Shreyansh. हाँ, श्रेयांश. जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे होते तो मुझे वो आपका नाम नहीं दिख रहा होता. तो श्रेयांश सेड दैट सेल्स प्रमोशन, हम अपने गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी के इमेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, हाँ, तो कि हमारे गुडविल बढ़ जाए. तो ये भी एक तरह का प्रमोशन है. But my dear student, when I'm talking here as a formation of the company, this promotion is completely different from all these. Remember here, a person who does the work of the promotion is called a promoter. What will you call it? Promoter. Can you repeat this? Okay, so promotion becomes the first stage in the formation of company. It involves conceiving a business idea and taking an initiative to form a company so that practical shape can be given to exploiting the available business opportunity. Right? So promotion माने conceiving the idea to identify the business opportunity, है ना? जो आदमी ये सोचता है कि मुझे इस चीज का बिजनेस करना है, वो हुआ प्रमोटर. और प्रमोशन माने क्या? पहली बात तो आइडिया को कंसीव करना, बिजनेस आइडिया को कंसीव करना. चलो हम ये बिजनेस शुरू करते हैं. तो ये आइडिया जब दिमाग में आया आपका, तो प्रमोशन शुरू हो गया. बट केवल कंसीव करना आइडिया को प्रमोशन नहीं है. प्रमोशन का आइडिया कंसीव करना, सॉरी, बिजनेस आइडिया को कंसीव करना और उस पे कुछ एक्शन लेना, कुछ इनिशिएटिव लेना उसको फॉर्म करने के लिए, so that practical shape can be given to that available business opportunity is called promotion. समझ आ रही है बात? हमने Yes, sir. बैठ करके सोच लिया कि हम चलो कल जो है एक ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें हम हवाई जहाज बनाएंगे.
और परसों हम उसको भूल गए। तो हमने आइडिया तो कंसीव किया, बट आई डिड नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू फॉर्म द कंपनी. I did not do anything to exploit that whether these business opportunities are available or not. I did not do any kind of feasibility studies. तो फिर ये प्रमोशन नहीं है. केवल सोचना प्रमोशन है ऐसा नहीं है. प्रमोशन सोचना बिजनेस आइडिया के बारे में और उस पर कुछ एक्शन लेना भी जरूरी है. मेकिंग सेंस? यस सर. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी आदमी स्टार्ट करे हैविंग डिस्कवर्ड अ पोटेंशियल बिजनेस आइडिया, जैसे ही किसी व्यक्ति ने कोई पोटेंशियल बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा तो प्रमोशन शुरू हो जाता है. सो कैन वी से दैट एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मे बी एक नहीं 4 आदमी मिलकर के ये काम करें, और इवन अ कंपनी, कोई ऑलरेडी एक कंपनी स्टैब्लिश है, वो कंपनी सोचे किसी दूसरी कंपनी को फॉर्म करने का, तो ये कंपनी हो चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो चाहे पर्सन हो, इफ दे आर गोइंग टू डिस्कवर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ कंपनी, टू फॉर्म अ कंपनी, देन वी कॉल देम प्रमोटर. इज दिस क्लियर? यस सर. Yes, sir. So a promoter is said to be the one such type of person who undertakes to form a company with reference to a given project and to set it going, and who takes the necessary steps also to accomplish that purpose, to achieve that purpose. So केवल conceiving the business opportunity काफी नहीं है, उस प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करना है ना. फिर कहां से मैन मटेरियल मशीन रिसोर्सेस आएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स कहां से आएगा, ये सब कुछ सोचना, सब कुछ करना प्रमोटर कहलाता है. यस सर. अब प्रमोटर का मीनिंग क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. तो बेसिकली प्रमोटर करता क्या है? इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट राइट 4 functions of promoter, so first one you will say identification of business opportunity, which I have explained you. Correct? यस सर. अब दूसरा आता है फिजिबिलिटी स्टडीज. फिजिबिलिटी स्टडी माने, अब देखो ये बहुत हमारा कॉमन वर्ड है, हम कई बार बातचीत में भी यूज करते हैं. देखो ये फिजिबल नहीं लग रहा मुझे, इसका मतलब क्या हुआ? फिजिबल माने बोलो. सही नहीं लग रहा है या फिर ऐसे कुछ. हाँ, जैसे अभी इस समय में पॉसिबल. यस. कोई फेट ऑर्गेनाइज करना, कोई फेयर ऑर्गेनाइज करना, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह ना, कोई एग्जीबिशन लगाना, ये सब फिजिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इस समय कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, भीड़ नहीं खड़ा कर सकते. है ना? यस सर. अच्छा, तो ये हमें ध्यान रखना होगा. मेकिंग सेंस टू यू? यस. यस सर. Yes, sir. है ना? तो ये अच्छा, अब फिजिबिलिटी स्टडीज में क्या क्या करना होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. आज के लिए हम लोग इतना ही. आज हमें लगता है टाइम से ज्यादा क्रॉस कर गए ना. यस सर. हाँ, तो कोई बात नहीं. प्लीज यू Thank you, sir. रिमाइंड मी, वन ऑफ यू शुड रिमाइंड मी. ओके, थैंक यू. यू मे लीव.